Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 3, part 2, the nature of business communication Topics to be covered in this session are the types of business communication, internal business communication, external business communication, communication network in organization, formal communication network and informal communication network. We have already discussed this wheel of business communication, in which we have discussed management has to get along or has to stay in continuous touch with these people like bankers, media, superiors, peers, subordinates, shareholders, employees, unions, customers, intermediaries, suppliers, government, society. They have to be in touch with them in order to continue their services. The wheel of business communication reinforces what we have discussed in the first session, that was about communication. That communication is like breathing, it never stops and is a constant process. A manager has to get in touch, in continuous touch with the internal stakeholders, on the one hand like superiors, peers, subordinates, shareholders, employees and their unions, and at the same time they have to communicate with external stakeholders like customers, intermediaries, suppliers, government, bankers, society and the media. Effective business communication therefore involves both internal and external communication. So we have already discussed in part 1 that there are internal business stakeholders, which are namely superiors, peers, subordinates, unions, employees, shareholders. We have already discussed, and various channels they use and what is their overall objective, reason for communication in the organization. We have discussed about that. नेक्स्ट इज ऑन द लिस्ट इज एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन. एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हमने ये भी जाना कि बाहर के जो लोग हैं कम्युनिकेशन जिनसे होता है लाइक कस्टमर्स या फिर इंटरमीडियरीज हैं, सप्लायर्स, मीडिया, बैंकर्स, ये सब एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन में आते हैं. और बिफोर वी डिस्कस द रीजंस फॉर कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन. External business communication is essential for these reasons. Number 1 on the list is to market successfully. Yes, of course, for successful marketing बहुत ज़रूरी है कि हम external business communication को ठीक तरीके से maintain रखें. Organizations need to inform and create awareness among consumers about their existing and new products. This is largely done through advertising, which is a form of mass communication. This is very much a part of external business communication. And another thing which is very important is to build corporate and brand image. पहला तो सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है या नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनको एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मास कम्युनिकेशन के थ्रू हम मार्केट करने के लिए सक्सेसफुली हमें एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. Next is to build corporate and brand image properly. So organization need to focus on projecting themselves as responsible corporate and social citizens. This is known as corporate social responsibility. For example, they need to communicate the fact that they are involved in social development or in environmental protection. So अपना कॉर्पोरेट और एक ब्रांड इमेज डेवलप करने के लिए, इसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि सिटीजन्स को लेकर उनकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये एस्टैब्लिश करने के लिए इसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं. लाइक they need to communicate the fact that they are involved in social development or in environmental protection. This involves being in touch with external stakeholders like consumers, media and society at large. तो brand image को develop करने के लिए, corporate image को develop करने के लिए और ये show करने के लिए, इस fact को communicate करने के लिए कि वो social development और environmental protection में involve हैं. This involves to get in touch with external stakeholders. Another thing on the list that why they are very important for an organization is to increase shareholder value. If customers have a positive image of the company's share price will go up and shareholders' wealth increases, thereby enhancing shareholder value. Shareholder confidence in the company also drives shareholder value. When shareholder value increases, they will participate in the company's expansion and growth.
जब शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज होती है तो कंपनी की एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसीलिए शेयर होल्डर वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए भी हमें एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। एंड टू ओवरकम क्राइसिस, समटाइम्स व्हेन अ कंपनी इज फेसिंग अ क्राइसिस, a public relations campaign may be needed to manage the situation, put things in proper perspective and restore the image of the company in the eyes of consumers, the media and society at large. Public relations require effective communication with various external stakeholders. तो किसी भी तरीके का क्राइसिस को जब हम ओवरकम करना चाहते हैं, अगर कंपनी कोई भी तरीके का क्राइसिस में है और वहाँ फेस करना है, तो एक पब्लिक रिलेशन कैंपेन की जरूरत पड़ती है ताकि इस सिचुएशन को ओवरकम किया जा सके एंड टू पुट थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड रिस्टोर द इमेज ऑफ द कंपनी, द आईज ऑफ द कंज्यूमर्स एंड मीडिया एंड सोसाइटी एट लार्ज. सो एग्जाम्पल वी कैन टेक, फ्यू ईयर्स अगो रिलायंस जो है उनको प्रोसिक्यूट किया गया था बाय द गवर्नमेंट फॉर इरेगुलरिटीज इन स्टॉक मार्केट. शेयर होल्डर्स ने भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था इस कंपनी को लेकर. रिलायंस देन माउंटेड अ काउंटर कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हेन दे होल्ड द ट्रुथ, gave the facts and figures and denied the allegations made against them. This helped them to regain the confidence and salvage their image. इसी तरीके से कोक और पेप्सी का भी हुआ था, जिन्हें एक्यूज किया गया था पेस्टिसाइड्स को लेकर in their soft drinks. So they had to undertake a massive public relation exercise to set right image in the eyes of public. तो अपनी इमेज को, क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए, इस तरीके से अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए, बेटर करने के लिए इन द आईज ऑफ पब्लिक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन वहाँ बहुत काम आता है जब हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है. और क्रेडिट रेटिंग को भी एनहांस करने के लिए an organization bonds, or we can say an organization's credit rating will also go up if it maintains good external communication. This way its borrowing ability will increase and more money can be raised for expansion and growth. Having emphasized the importance of external business communication, let us now go into the reasons for communicating with external stakeholders and the channels used to communicate with them, just as we did with internal communications. So in order to enhance the credit rating, wheel of business communication is very much required, और we can say external business communication का यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ेगी अगर हम मार्केट करना चाहते हैं सक्सेसफुली, कॉर्पोरेट और ब्रांड इमेज डेवलप करना चाहते हैं, शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं एंड क्राइसिस ओवरकम करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद दैट इफ वी वांट टू एनहांस क्रेडिट रेटिंग. Now I want to introduce you with the different external business communication में जो interaction जिनके साथ रहेगा stakeholders के साथ, I want them to be introduced to you here. Consumers organization need to communicate with consumers to provide information about their products and services. Product के बारे में, promotions के बारे में, special promotional offers के बारे में, नए product की development के बारे में, इन सब चीज़ों को लेकर consumers से बात करनी बहुत ज़रूरी है. तो ऑर्गेनाइजेशन अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट करेगा, विच आर अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन, फॉर their new product development, special promotional offers about their product services. They also need to redress consumer complaints so as to maintain consumer preference and confidence in their brands. Written channel यहाँ पर सबसे बेस्ट चैनल रहेगा क्योंकि it is the most appropriate medium for communicating with consumers. चाहे वो लेटर्स हो सकते हैं या फिर मास मीडिया एडवर्टाइजिंग, बट रिटन कम्युनिकेशन विल बी द बेस्ट कम्युनिकेशन हेयर. नेक्स्ट इज इंटरमीडियरीज. कंज्यूमर्स का रीजंस अब समझ पाए हैं कि एग्जैक्टली स्पेशल प्रमोशंस को लेकर या प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर, प्रेफरेंस मेंटेनेंस को लेकर एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को लेकर, redressal of complaints and product information. These are the few reasons for communication by the organization with their consumers. So next on the list is intermediaries. Intermediaries में हम distributors, wholesalers, retailers, franchisees, this refers to the trade with intermediaries. इनके साथ भी communicate करना बहुत ज़रूरी है ताकि information देते रहें about the product availability, special offers, incentives को लेकर, allowances को लेकर, contractual aspects, order processing, delivery aspects, merchandising or visual display of products. Keeping intermediaries aware and informed and motivating them to meet targets through competition, prices
and incentives is extremely important for the success of any product. So the appropriate channel of communication with intermediaries could be both oral and written channel. Written contracts हो सकते हैं उसमें, एडवर्टाइजिंग, अनाउंसिंग स्पेशल ऑफर्स, डीलर का न्यूज़ लेटर, इंसेंटिव्स, ये सब में हम रिटन कम्युनिकेशन, रिटन चैनल्स हम कह सकते हैं इनको. पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग्स और कंटिन्यूस कम्युनिकेशन थ्रू सेल्स स्टाफ, ये भी इनके साथ रहता है और ये ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट रहेगा. तो वी कैन से इंटरमीडिएरीज के साथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन बोथ विल वर्क. नेक्स्ट इज बैंकर. बैंकर के साथ आप जानते हैं कि बैंकर में लाइक शेयर होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कम्युनिकेट विद बैंकर बोथ इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, क्योंकि वहां पर आपको बैंक से लोन लेने के लिए इट इज लाइक सेम एज शेयर होल्डर्स. In addition, advance notice needs to be given to bankers regarding any dislocation in repayment. अगर किसी भी तरीके का आपका रीपेमेंट स्केड्यूल में डिसलोकेशन है तो वहाँ पर भी उनको एडवांस नोटिस देना होगा, एडवांस में थोड़ा सा इन्फॉर्म करना होगा about the dislocation in repayment schedules, and justification has to be provided for any additional fund needs. The overall purpose is to build rapport with the bank so as to increase borrowing ability. Communication with bankers could take place through oral channels, for example, periodic meeting with the finance manager of the company to keep them informed of stock, build-up trends or future trends that could affect working capital needs. Special meetings may also be held to keep them posted about expansion, contraction and diversification plans, lockouts, strikes and anything else that may अफेक्ट कैश फ्लो. सो वहाँ पर भी आपको बैंकर्स को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ सेम एज शेयर होल्डर्स और एडवांस नोटिस देना होगा आपको ऑफ डिसलोकेशन एंड रीपेमेंट शेड्यूल्स, एंड अलॉन्ग विद दैट एडिशनल फंड नीड्स और फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस के लिए भी आपको इनके साथ एक रीज़न के कम्युनिकेशन के रहेंगे. इन एडिशन टू ओरल चैनल्स, पीरियोडिक रिटन रिपोर्ट्स भी आपको देनी होती हैं, सबमिट करनी होती हैं बैंक को, और ऑन ओवरऑल बिजनेस कंडीशन. ट्रांसपेरेंसी चाहिए इन डीलिंग्स विद द बैंक, और फेलियर टू कीप देम इन्फॉर्म कुड लीड टू द कंपनीज कोलैप्स. आप जानते हैं कि अगर बैंकर्स को ठीक तरीके से हमने इन्फॉर्म नहीं किया या कम्युनिकेट नहीं किया तो कई बार कोलैप्स होने का भी खतरा रहता है कंपनी का. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एनरॉन कंपनी का, जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को ठीक से कम्युनिकेट नहीं करा, बैंकर से ठीक से कम्युनिकेट नहीं करा, इन्फॉर्म नहीं करा उन्हें अबाउट द डिफिकल्ट टाइम्स दैट दे वर गोइंग थ्रू, एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू द कंपनीज रूइन. सो यहाँ पर हमें बैंकर्स के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ उन्हें ठीक तरीके से इन्फॉर्म करना चाहिए वॉट एवर डिफिकल्ट टाइम्स द कंपनी इज गोइंग थ्रू, एंड अदरवाइज इट लीड टू द कंपनीज रूइन ऑल्सो, एंड इट लीड टू द कोलैप्स अल्टीमेटली. गवर्नमेंट की बात करें तो कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और ये भी एक पब्लिक रिलेशन का पार्ट है. Many Indian companies even appoint a PR officer for maintaining good relations with the company or the government. The reasons for communicating with government include compliance with tax matters, यानी कि legal aspects को लेकर, tax matters को लेकर compliance के लिए, या seeking clearances for new activities, tax matters such as joint ventures को लेकर, overseas bank से borrowing को लेकर, foreign exchange requirements and so on. इन सब पर्पसेस को लेकर, इन सब रीजंस को लेकर गवर्नमेंट के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करना होता है. कम्युनिकेशन विद गवर्नमेंट कुड टेक प्लेस थ्रू बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. मीटिंग्स की बात करें अगर विच रिगार्ड्स टू स्टेटूटरी compliances such as licensing. However, most of the time written communication through formal letters is more appropriate. This is because clearances for various activities has to be sought in writing. तो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ जो है, these are the few reasons for their communication. Next on the list is suppliers. Suppliers जो आपको सप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, पावर, वाटर एंड अदर यूटिलिटीज. कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स इज एसेंशियल टू गिव टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर उनके साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी होगा. क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए, टाइमली डिलीवरी के लिए. So there are the few reasons for communication with stakeholders are like quality, specification and delivery aspects. So today, due to outsourcing means relying on outside sources for raw materials and
कंपोनेंट्स। पहले एक कंपनी खुद ही बना लेती थी, लेकिन आज एक कंपनी को आउटसोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है। दे रिलाई ऑन आउटसाइड सोर्सेज फॉर रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। There is need for more sophisticated and direct communication and a more continuous ongoing relationship with suppliers. Internet now plays important role in communication with suppliers through B2B, that is business to business communication. आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में काम करते हैं अपने सप्लायर्स के साथ, whereby there is total involvement on both sides. इनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 communication is required to ensure transparency and clarity. यहाँ पर transparency और clarity की बहुत ज़रूरत है, तो 1-to-1 communication will be the best communication है. Oral face-to-face channel is most appropriate, although the online channel is being increasingly used in supplier communication. So here are few needs, or we can say few reasons why we need suppliers and why we need to communicate with them properly. Another important stakeholder is society. Organization need to communicate with the community at large to project themselves as responsible corporate citizens. Corporate social responsibility, as it is called, is top priority with many organization. अपने आप को एक corporate social responsibility में establish करना ये आज बहुत से ऑर्गेनाइजेशन की टॉप प्रायोरिटी बन गई है. इसमें कई लोग सपोर्टिंग विमेन्स एजुकेशन या बिल्डिंग हॉस्पिटल्स फॉर डिसेबल्ड, स्कूल फॉर चिल्ड्रन, फैमिली प्लानिंग, नॉन पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ये कुछ कंपनीज हैं जो इस तरीके के पार्टिसिपेशन करती हैं इस तरीके के सोशल डेवलपमेंट में, एंड देन कम्युनिकेटिंग दिस टू सोसाइटी. Channel of communication with society could be oral and direct. For example, talking to elders in a village or locality about family planning or schools for children. Mass media advertising in the form of public service advertising could also be used to spread these social services message. तो इस तरीके के social services message को बताने के लिए और उन्हें disseminate करने के लिए, spread करने के लिए हमें society के साथ communicate करना होता है. लाइक यूनाइटेड ब्रेवरीज जो एक पब्लिक सर्विस कैंपेन को अपनाती हैं विद कैप्शन ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग डोंट मिक्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अवॉइड ड्रंक एंड ड्राइविंग. देयर इज लार्ज एलिमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस इन कम्युनिकेशन विद सोसाइटी. सो दीज आर द फ्यू रीजंस व्हाई वी नीड टू कम्युनिकेट, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कम्युनिकेट विद सोसाइटी. अनदर इज मीडिया. मीडिया के साथ गुड रिलेशंस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है. मीडिया आप जानते हैं आजकल बहुत ही पावरफुल और इन्वेस्टिगेटिव हो गई है, और इनफैक्ट दे आर इंट्रूडिंग इनटू पीपल्स पर्सनल लाइफ. और अगर गलत इन्फॉर्म कर दिया मीडिया ने, इट कैन डिस्ट्रॉय एन इंस्टीट्यूशन. तो इसीलिए प्राइमरी रीज़न रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कि अपने अच्छे रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन करके रखें विद मीडिया. सो द प्राइमरी रीज़न फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद मीडिया इज टू मेंटेन गुड रिलेशंस. If the company projects a favorable image to the media in turn will carry a positive story about the company for free. This is known as publicity and is part of public relations. For example, press release in the newspaper may highlight some of the achievements and or awards won by the company. This type of publicity is highly credible and can have powerful influence on people. So media ये काम करती है, उनका रीज़न रहता है to maintain good relations. इसीलिए मीडिया के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि अपनी एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप कर सके, गुड रिलेशंस बना सके. कम्युनिकेशन जो है इनके साथ बहुत ओरल चैनल्स सच एज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रिटन चैनल से भी होता है, जैसे कि लेटर्स या फिर न्यूज रिलीजेस. नाउ देयर आर फ्यू चैनल्स स्टेक होल्डर्स यूज. कंज्यूमर्स की बात करें तो एडवर्टीजमेंट्स और लेटर्स इनका चैनल रहता है, और इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहता है अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और परसुएशन. तो कंज्यूमर्स से जब एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कर रहा है तो उनका चैनल रहेगा लेटर्स के थ्रू या एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा कंज्यूमर्स को परसुएड करना, अवेयर करना और इन्फॉर्म करना, मे बी अबाउट द न्यू प्रोडक्ट और द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और टू परसुएड देम टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज. इंटरमीडिएटरीज के साथ चैनल हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, रिव्यू मीटिंग्स, न्यूज लेटर्स. ऑब्जेक्टिव रहता है अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन. बैंकर्स की बात करें तो मीटिंग रिपोर्ट्स इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैनल रहता है, और इनका जो ऑब्जेक्टिव है उनके साथ रैपो अच्छी बिल्डअप करना रह जाता होता है, ताकि एडवांस पेमेंट्स को लेकर या लोन्स को लेकर एक अच्छा रैपो उनके साथ बिल्डअप हो सके. और अगर डिसलोकेशन है इन रीपेमेंट
तो तब भी उनके साथ आपको इस तरीके का गुड रैपो बिल्डअप करने के लिए बैंकर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है। अबाउट गवर्नमेंट, इनके साथ चैनल रहता है पीरियोडिक मीटिंग्स और फॉर्मल लेटर्स, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट का कॉपरेशन, ताकि वेरियस मैटर्स में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरा करना है उनके लिए गवर्नमेंट का कॉपरेशन रहे। सप्लायर्स के लिए डायरेक्ट ओरल कम्युनिकेशन या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन बोथ विल वर्क, और ऑब्जेक्टिव रहता है कंपनी सप्लायर पार्टनरशिप, ताकि दोनों की एक पार्टनरशिप डेवलप हो सके। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल कई ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं विद देयर सप्लायर्स, वेयर देयर इज a total involvement on both sides required. For example, company engineer might train the shop floor technical staff of a supplier of automotive components in order to improve the quality of the components. The supplier on his site may suggest a change in the company's specification process. So society की अगर बात करते हैं, so channel will be direct oral and mass media। यहाँ पर oral channels के advertisements के थ्रू या फिर mass media के थ्रू हम इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और यहाँ पे इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉर्पोरेट तरीके से किस तरीके से हम इलाबरेट कर सकते हैं और कैसे इंफॉर्मेशन डाइसेमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन का। मीडिया की अगर बात करते हैं तो मीडिया के साथ चैनल रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन का न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस या न्यूज़ रिलीजेस, और अल्टीमेट इनका ऑब्जेक्टिव तो रहता है गुड रिलेशंस बिल्डअप करे जा सके मीडिया के साथ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर रॉन्गली इन्फॉर्म कर दिया तो मीडिया कैन डिस्ट्रॉय एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी रीजन रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मीडिया के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करे टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद देम। इफ द कंपनी प्रोजेक्ट्स अ फेवरेबल इमेज टू द मीडिया, मीडिया इन टर्न विल कैरी अ पॉजिटिव स्टोरी अबाउट द कंपनी फॉर फ्री। मीडिया फ्री में उनकी पब्लिसिटी करेगी, and this is known as publicity and is a part of public relations. So in order to build good relations, overall objective is to build good relations if they want to communicate well to media. अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर रीजंस क्या है कम्युनिकेशन के। सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर से क्यों बात करेंगे, रीजन क्या है उनका। वर्क प्रॉब्लम्स, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, फीलिंग अबाउट जॉब और कोवर्कर्स। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एक्चुअली देयर आर डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स रेफर्स टू हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज विद द ऑर्गेनाइजेशन। क्या किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी ऑर्गेनाइजेशन में। इंफॉर्मेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली फ्लोज थ्रू अ सिस्टम rather than being a free flow. In the words of Adler, communication networks are regular patterns of person to person relationships through which इंफॉर्मेशन फ्लोज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल की अगर बात करते हैं तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है इट इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट और डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इसमें एक हायरार्की रहेगी जिसमें एक अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रहेगा। तो सबऑर्डिनेट से जो सुपीरियर है, फर्स्ट इज दिस, तो यहाँ पे इनका रीजन क्या रहेगा कम्युनिकेशन का। अपनी वर्क प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, और फीलिंग्स अबाउट जॉब एंड कोवर्कर्स। तो ये एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है क्योंकि दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन बिकॉज यहाँ पर आप सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज अपवर्ड की तरफ ये जब फ्लो कर रहा है इस तरीके का हायरार्की। So this may be defined as information in which the information flows from subordinates to superior. इनके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ भी प्रॉब्लम्स या इम्प्रूवमेंट को लेकर या जॉब के लिए फीलिंग्स, इनके कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस बोथ रहते हैं। बिगेस्ट बेनिफिट्स इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो सकती है, और वो अगर सुपीरियर के नोटिस में लेकर आता है सबऑर्डिनेट तो चांसेस हैं कि वो दोबारा नहीं होगी, एंड सबऑर्डिनेट लर्न्स फ्रॉम ए सुपीरियर हाउ ही विल टैकल इट नेक्स्ट टाइम। Or acceptance of another benefit is arise from upward communication is valuable ideas and suggestions may sometimes come from lower level employee. कई बार ऐसा होता है कि lower level employee से भी अच्छे decisions आ जाते हैं, अच्छे information आ जाती है, अच्छे ideas आ जाते हैं। Therefore, organization should encourage this kind of communication. और third is to employees learn to accept the decisions from management, thereby work as a team. तो acceptance रहता है management decisions का। Potential problems की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम भी रहता है कि handling down of decisions by superiors.
When subordinates frequently seek the superior's guidance, the latter may adopt an authoritarian approach and merely give instructions disregarding the subordinate's opinion completely. तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहता है कि हैंडलिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स जो सुपीरियर्स हैं वो एक अथॉरिटेरियन अप्रोच बना लेते हैं और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना ही ज़रूरी समझते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स. This is formal communication network for downward communication. Downward communication, जैसा कि it is more clear with the name, is from superior to subordinate. Superior से subordinate की तरफ जाता है और इनका reason रहता है job instructions देना. Obviously जो superiors हैं वो अपने subordinates को job instructions देंगे, explain करेंगे कंपनी की rules, policies, procedures और उनको feedback देंगे regarding job performance. इसके लिए बहुत सारी स्टडीज ने इंडिकेट किया है कि रेगुलर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक गिवन टू एम्प्लॉइज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग जॉब सेटिस्फैक्शन. इनके भी कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस रहते हैं. अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करें तो हमें फीडबैक देना बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना चाहिए कि एक कंस्ट्रक्टिव रिव्यू होना चाहिए. जो फीडबैक दिया जा रहा है वो कंस्ट्रक्टिव रिव्यू से होना चाहिए. Constructive review is one where manager counsels an employee or advises him on how to improve his performance. On the other hand, destructive review जो है वो employee का morale या confidence totally destroy कर देता है. और regular downward communication जो है उससे transparency आती है, openness आती है. Thirdly, downward communication से high employee का boost होता है morale. It will lead to high morale since it indicates that management is involved in their प्रोग्रेस. प्रॉब्लम इनकी ये रहती है कि डेंजर रहता है कि डिस्ट्रक्टिव रिव्यू ना हो. अगर गलत तरीके से बताया जाए तो वो कई बार डिस्ट्रक्टिव रिव्यू बन जाता है और इससे एम्प्लॉय का मोराले भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड समटाइम्स मैसेज ओवरलोड होना भी इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. व्हेन समटाइम्स सुपीरियर्स बर्डन देयर सबऑर्डिनेट्स विद टू मेनी इंस्ट्रक्शंस लीडिंग टू कंफ्यूजन्स. हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन को-वर्कर्स इन द सेम डिपार्टमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट. एक ही डिपार्टमेंट में जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, लाइक ए सेल्स मैनेजर या एडवर्टाइजिंग मैनेजर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट और मार्केटिंग मैनेजर्स एंड फाइनेंस मैनेजर्स. तो एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं. इनका रीजन रहता है कम्युनिकेशन का टास्क को कोऑर्डिनेट कर सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें रिगार्डिंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिजॉल्व कर सकें कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रैपो बिल्डअप कर सकें. बिगेस्ट इनका बेनिफिट रहता है कि टीम वर्क यहाँ पे रहता है. रेगुलर कम्युनिकेशन अगर रहे तो इट विल लीड टू अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और लेकिन एक बिगेस्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम ये रहती है कि ईगो क्लैशेस हो जाते हैं बिकॉज को-वर्कर्स आर द सेम लेवल, their co-workers are at the same level or on the regular basis. So sometimes it lead to ego clashes that are bound to rise from in this kind of communication. Next, if we are talking about informal communication network, informal communication network की बात करें तो grapevine भी हम इसे कहते हैं. In this type of network, information does not flow in particular direction. कोई एक डायरेक्शन नहीं है जैसा कि हमने फॉर्मल नेटवर्क्स में पढ़ा. इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट पास ऑन थ्रू ऑफिशियल चैनल्स. यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास करती है थ्रू नॉन ऑफिशियल चैनल्स. इंफॉर्मेशन नॉन ऑफिशियल चैनल्स में हम आपस में किसी भी तरीके से ओरल फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल चैनल्स जैसे कि मेमो, नोटिस, बुलेटिन बोर्ड्स का हम यूज नहीं करेंगे. इंफॉर्मेशन जो है इट नीड नॉट टू बी सर्कुलेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट कैन बी पास्ड ऑन आउटसाइड द वर्क एनवायरमेंट जहाँ पे कलीग्स या कोवर्कर्स सोशली मीट कर सकते हैं. इनफॉर्मल नेटवर्क्स आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, शेयर्ड पर्सनल और करियर इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट आपका एक ही है या पर्सनल इंटरेस्ट एक ही है, करियर इंटरेस्ट एक ही है, तो वहाँ पर हम कई बार इनफॉर्मल नेटवर्क जो है वो बेस करते हैं. एग्जाम्पल, कोवर्कर्स मे मीट आउटसाइड द वर्क एनवायरमेंट एट द कंपनी पिकनिक, पार्टी और कारपूल, डिस्कस एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड दैट मे और मे नॉट बी वर्क रिलेटेड. जरूरी नहीं है कि वर्क रिलेटेड हो. इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है अबाउट हैपनिंग्स इन द कंपनी या ले ऑफ्स या कंपनी के प्लान्स को लेकर. इसका फायदा ये रहता है कि ट्रांसपेरेंसी गैप को फिल करता है विच इज लेफ्ट बाय फॉर्मल नेटवर्क्स. क्योंकि दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क इज नॉट जस्ट फॉर आइडल रूमर्स के लिए नहीं है, ये कई तरीके से यूजफुल हो जाता है. ये गैप्स जो हैं
फॉर्मल नेटवर्क्स में आ जाते हैं, जो वो यहाँ पर इनफॉर्मल नेटवर्क्स में फिल हो जाते हैं इस तरीके के ट्रांसपेरेंसी गैप. सच गैप्स यूजुअली अकर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और the strikes and layoffs may not be officially announced. और secondly it is help to confirm important information. confirm करने के लिए भी काम आता है, जैसे कि fact that the company is going on in major acquisitions, या फिर grapevine जो है वो एक constructive purpose के लिए भी यूज किया जा सकता है. Like the government could get the press to publish news in the local paper that there is going to be a petrol price like soon, जस्ट टू टेस्ट द रिएक्शन ऑफ द जनरल पब्लिक. इस तरीके का कंस्ट्रक्टिव वे में पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है. इस तरीके के रूमर्स फैलाए जा सकते हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि जनरल पब्लिक का रिएक्शन क्या रहेगा. रिएक्शन अगर नेगेटिव है देन द न्यूज मे बी विथड्रॉन ऑन द बेसिस दैट इट इज जस्ट अ रूमर. सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली प्लांट प्रपोजल्स इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और इट शुड बी एक्सेप्टेड विद formal networks, and it should be accepted with formal networks. That's all for this session. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learn.